Assalamu alaikum. We are live from the listener.pk's account. I hope you all are doing well. And today's live session is about overthinking and well-being. If you have any questions related to this particular topic, please leave them in the comment section below and we will be answering them at the end of the live session. हमारे जो आज की गेस्ट स्पीकर हैं, her name is Sumbul Gilani. She is a clinical psychologist, and as soon as Sumbul joins us, we are going to start with the session. So we do have people joining in. For people who just joined, हमारा आज का live session है. It's about overthinking and well-being. If you have any questions related to this particular topic, please leave them in the comment section below, and we'll be answering them at the end of the session. And in case people who are new to us, people who are not really familiar with what the listener.pk is, the listener.pk is a mental health helpline. We are available 24/7, 365 days हम here के operate करते हैं. And today on Saturday we have a free therapy session. So if you want to avail this chance, if you want to get free therapy, please just drop us a message in inbox. हमें inbox कर दें Instagram पे या Facebook पे. We'll book a session for you ourselves, or you can just call us on our 24/7 available helpline, और वहाँ के थ्रू उसके थ्रू भी आपका फ्री therapy session बुक हो सकता है. So we are waiting for our today's speaker to join us. Ms. Sumbul Gilani, she's a clinical psychologist, and as soon as Sumbul joins us, we are going to start with the session. And our today's session again is about overthinking and well-being. So हमारे पिछले एक आधे कुछ सेशन के अंदर some of the people they suggested that we should do a session on overthinking, because a lot of people are facing this issue आजकल overthinking का. So we are briefly going to discuss about what overthinking is, how can you cope with overthinking, how do you stop overthinking, और ये सारी चीज़ें. If there's anything else you would like us to answer, if there's anything else you would like us to say or talk about, please leave us a message and please drop us a message. फ्री सेशन के लिए मैसेज करें. येस प्लीज़ फ्री सेशन, फ्री थेरेपी सेशन के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर, और हमारे 24/7 अवेलेबल हेल्पलाइन का नंबर भी अवेलेबल होता है. सारी पोस्ट के नीचे आप डायरेक्टली वहाँ कॉल करके भी बुक कर सकते हैं सेशन. तो आज सैटरडे को फ्री थेरेपी सेशन है, इफ़ यू वांट टू वेल दैट. इसके अलावा वी आर वेटिंग फॉर Sumbul to join us so that we can begin with the live session. Alright. Again, for the people who are just joining us, हमारा आज का session है overthinking and well-being के ऊपर. If you have any sort of questions related to this particular topic, please comment below and we are going to answer them at the end of the session. Right, Sumbul is still not here. I guess she is going to join us in 2 minutes. So we'll wait for her for a few more minutes and then we can start with the live session. All right, guys, still don't see Sumbul over here. Okay. All right, so for the people who are just joining in, हमारा सैटरडे को फ्री थेरेपी सेशन भी होता है. If you want to avail that, if you want to go for a free therapy session, no, we don't currently have a branch in Karachi. हम सिर्फ लाहौर में ऑपरेट करते हैं, लेकिन we are available on call. All right, going to just send Sumbul a question. हम कराची के अंदर नहीं है, हमारे सिर्फ ऑफिस जो क्लिनिक है, हमारे इन क्लिनिक सेशन सिर्फ लाहौर के अंदर होते हैं. उसके अलावा हम ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं. आप कॉल पे, वीडियो कॉल के ऊपर सेशंस अवेल कर सकते हैं. Let's see if I can send Sumbul a request to join. Okay. Alright, so we're still waiting for Sumbul to join us. I guess she has some sort of problem at her end. Okay. Alright, she's here. Let's see if we can get her in. And then we are going live with Sumbul Gilani. Hello. Hello, assalamu alaikum. Welcome, Salam. How are you? I'm good. How are you? I'm good, Alhamdulillah. All right. So, Sumbul, shall we start with the session? Yes, please.
Go ahead. All right. So Sumbul Gilani over here is a clinical psychologist, and she has highlighted a lot several mental health related issues on her timeline, and she teaches people how to discover themselves and heal themselves. So thank you very much, Sumbul, for joining us here today. And if there's anything you would like to add in your introduction, please go ahead. Okay, so thank you so much for the warm introduction and thank you for inviting me to your page. I am Sumbul Girani, trained and practicing as a clinical psychologist. And on the other side, I work in public mental health. I'm currently working as a national consultant for mental health with WHO Pakistan. And I'm also a visiting faculty at NUST. So I keep on doing a lot of things at the same time, but Instagram and my page has been one of my passions because I wanted to talk about mental health, to educate people on mental health, and to actually make mental health so simple for people that they could relate to it. So that's how my page came about, and that's why I invest a lot in it. Yeah. And that So is that's exactly why we have you here today. yeah. Definitely. All right. So Simple, let's begin with the session. तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का जो लाइव सेशन है, it's about overthinking and well-being. So बिल्कुल basic से start करते हैं because we see a lot of people. I've personally seen people confusing normal thinking process को overthinking के साथ. When you naturally thinking, जब आप सोच रहे होते हैं, कुछ people start labeling it as overthinking. So how would you differentiate it? Yeah, what exactly is overthinking? How would you define overthinking? Okay. Actually, आपने बिल्कुल ठीक कहा. A lot of us are actually confusing overthinking and normal thinking क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं आता कि किस point पे we are crossing into or stepping into overthinking and then how do we come back. So simple अल्फाज में thinking is something जो कि constantly हमारे दिमाग में चल रही होती है. ठीक है, हम लोग हर time सोच रहे हैं, चीजों को process कर रहे हैं, stimuli ले रहे हैं, हमारे environment में जो भी हो रहा है, social interactions, events, हम सब चीजों को लेते हुए कुछ अपनी थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपना एक एक्सपीरियंसेस को लेके कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं. अब ये ओवर थिंकिंग तब बनती है जब हम चीजों को इतना सोचना शुरू करते हैं कि वो हमारी डे टू डे लाइफ पे असरअंदाज होना शुरू हो जाए. मिसाल के तौर पे someone has to take a decision. Now आप इतना सोच रहे हो, उसको इतना सोच रहे हो कि आपको डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, यहाँ तक कि वो अर्जेंट मोमेंट गुजर गया इन विच यू हैव टू डिसाइड. Another incident would be आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपने कोई वर्क डेडलाइन मीट करनी है, कोई टाइमलाइन के अगेंस्ट आप चल रहे हो और आप इतना सोच रहे हो कि आप अपना टास्क शुरू ही नहीं कर पा रहे, लेट अलोन फिनिश इट. सो व्हेन योर थिंकिंग इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू इन कैरिंग आउट योर डे टू डे एक्टिविटीज, तो हम कहते हैं कि अब ये ओवर थिंकिंग बन चुकी है. So you see, now you know how to differentiate between it. अगर आप इतना सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो, सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पा रहे हो, तो it's not overthinking. But if otherwise, तो definitely it's overthinking. Yeah. ठीक हो. All right. So what are some of the signs of overthinking? How do you know कि इस time पे आप overthink कर रहे हो कुछ? Okay, like I said, पहले भी कि overthinking का basically होता ये है, थोड़ा सा और इसको break down करते हैं, unfold करते जाते हैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे. So overthinking में होता ये है कि दो तरह की thoughts होती हैं जो हमें परेशान करती हैं. एक होती है thoughts about the future, कि आने वाले टाइम में क्या आएगा. बहुत सारे लोग होते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि मैंने ये डिसीजन ले लिया या मैंने ये किया या अभी लाइफ में ये है, मेरे आसपास ये हो रहा है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, कल को क्या होगा. सो दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट and they are unable to live in the present. They are unable to do fulfill the responsibilities that they have in the now, and they're constantly thinking about आगे. ठीक है. फिर एक और टाइप होती है जो कि हम कहते हैं ruminate करते हैं. They basically stay in their past. So मैंने इतने साल पहले या इतने दिन पहले ये काम किया, काश मैं ये ना करता, क्या काश मैं ये ना करती, काश मैं डिफरेंटली कर लेती. अब हम आगे नहीं जा रहे, हम कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि what happened in the past. So हम इसको बेसिकली ruminate करना कहते हैं. तो जो लोग मेंटल हेल्थ की चीजों को जल्दी जल्दी गूगल कर लेते हैं, ये उनके लिए भी एक टिप है कि अगर आपने ओवर थिंकिंग के बारे में पढ़ना है तो rumination के बारे में जरूर पढ़िएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बहुत सारे हम ये काम कर रहे होते हैं. सो नाउ हाउ डू वी नो कि हम लोग प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग पैटर्न्स में चले गए हैं या फिर हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. तो उसमें ये होता है कि अपनी थॉट्स पे ध्यान दीजिए, अपनी सोचों को देखिए कि ज्यादातर आपका दिमाग कहाँ पे इन्वेस्टेड रहता है. अगर आप पढ़ने बैठे हैं, मिसाल के तौर पे यूर स्टूडेंट एंड यूर स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, अभी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन आप बुक खोलते साथ
या तो ये सोचने लगे हो कि इसके बाद कितना स्कोर करके आपने कौन से कॉलेज में जाना है, या ये सोचने लगे हो कि काश मैं पहले पढ़ लेता या पढ़ लेती, लेकिन इन एनी केस आप पढ़ नहीं पा रहे। सो दैट्स अ साइन कि आप नहीं कर पा रहे हो ये काम, ठीक है। सो आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और आप नहीं ले पा रहे बिकॉज यू आर अगेन स्टक इन अ लॉट ऑफ थॉट्स। सो दैट्स हाउ यू नो के it's getting problematic now. So इसकी like the only and the very good indication is कि जब आप अपनी day to day activities को पूरा नहीं कर पा रहे होते, so that tells you कि जी कुछ मसला है आपके साथ, ठीक है। Alright. So Subir, how does overthinking impact our mental health? So my mental health के ऊपर directly इसका क्या impact है? Well, एक बहुत ही कॉमन सी मिसाल है जो कि अक्सर जगहों पे लोग यूज करते हैं, that's something that we use to talk about mental health as well, sorry overthinking and mental health as well। कि हम कहते हैं ना कि पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, we don't know पहले क्या आया था। So overthinking is both ways associated to mental health। ओवरथिंकिंग की वजह से आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ट्रॉमा, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड दीज डिसऑर्डर्स कैन कॉज ओवरथिंकिंग। दिस इज अ टू वे कनेक्शन। So either you are overthinking a lot and you are getting yourself more prone to get one of these disorders, या फिर आपको इनमें से कोई disorder है जिसकी वजह से आप overthink कर रहे हो। बट इन आइदर केस मैं ये कहूंगी कि ये जानना ज्यादा जरूरी है, ये रियलाइज करना ज्यादा जरूरी है कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ये जानना कि क्या हमें इसकी वजह से बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है। बिकॉज हमें अगर इतनी अवेयरनेस हो, अगर हम इतने जो लोग मेरे सेशन सुनते रहते हैं रेगुलर, उनको पता होगा कि मैं माइंडफुलनेस के बारे में बहुत ज्यादा बात करती हूँ कि you should be so mindful and so aware about what your mind and body is doing at one point, कि आपको पता हो कि अच्छा मैंने ओवरथिंक करनी शुरू कर दी है, what can I do about this now? Is it good for me? Is it bad for me? How to deal with it? तो ये वाली अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ हम ये सोचें कि किस वजह से हो रहा है या कहाँ से आ रहा है या कहाँ लेके जा रहा है, ठीक है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो दैट यू हैव इट। सो वंस यू गेट देयर कि ओके फाइन ये मसला है, तो शायद आप उसको ठीक करने के लिए भी कुछ ना कुछ करोगे। ठीक हो गया। So Samir, अभी आपने कहा कि overthinking is it good for me or bad for me? So is there any kind of good overthinking as well? हम ये नहीं कह सकते कि गुड ओवरथिंकिंग होती है या बैड ओवरथिंकिंग होती है, लेकिन रूटीन में भी अगर हम किसी अच्छा ओवरथिंकिंग को देखने का एक और तरीका भी है, लेट मी एक्सप्लेन दैट, मे बी उससे हमें समझ आ जाए। जब हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं तो बेसिकली ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन उस वक्त एक एनालिसिस वाली मोड में गया हुआ होता है। इट्स एनालाइजिंग एवरीथिंग ना, जो हमारे आसपास हो रहा है, जो आगे होगा या जो हो चुका है, हमारा ब्रेन एक्चुअली उसको डाइसेक्ट करके एक एक चीज सामने लेके आ रहा होता है, क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, ये हो गया तो क्या होगा, ये किया तो क्या किया, ठीक है। सो ब्रेन इज एनालाइजिंग इट। सो अगर तो आप किसी एक खास, मतलब हम सब ऑन एंड ऑफ अपनी लाइफ में कभी ना कभी ओवरथिंक करते हैं, कोई ऐसा दिन होता है, कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसके साथ हम स्टकअप हो जाते हैं, हम काफी देर लेते हैं सोचने में, कभी कभी हम दिन भी लेते हैं, 3-4 दिन हम एक मसले के साथ फंसे हुए होते हैं। बट द थिंग इज दैट इवेंचुअली हेल्दी पर्सन, अ पर्सन उसकी कोपिंग अच्छी है, वो उसमें से निकल आता है। बट इफ यू आर अ क्रॉनिक ओवरथिंकर, आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, आप उसमें फंस जाओगे। So overthink in itself may not be that bad अगर आपको उससे निपटना आता हो, ठीक है। क्योंकि ब्रेन जब एक दफा एनालिसिस वाली मोड में चला जाता है तो वहां से उसको निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि वो लूप पे चल रहा होता है ना, हर एक सोल्यूशन के लिए दिमाग एक मसला ढूंढ रहा होता है। कैसा, तुम ये कर लोगी तो अगर ये हो गया तो क्या होगा, ठीक है, देन यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, देन ये हो गया तो क्या होगा। सो उस लूप में से निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि एक तो हम अवेयर हों कि हम लूप में फंस गए, और दूसरा हमारी कोपिंग इतनी अच्छी हो कि हम लोग वो रिस्क ले सकें। और पता है मजे की बात ये कि मोस्टली जो हाई अचीवर्स होते हैं या जो परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, वो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं। तो अगर आप उनकी वो एक लाइफ ट्रेजेक्ट्री देखें, उनकी सक्सेस की ट्रेजेक्ट्री देखें, तो इट्स हाई, मतलब दे आर सो सक्सेसफुल बिकॉज दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ द लूप, दे डोंट गेट स्टक देयर ना। लेकिन हम में से अक्सर लोग स्टक रह जाते हैं वहां पे। सो वो स्टक रहने की वजह से क्या होता है कि बस आप, दिमाग तो चलता रहता है, वो नए नए मसले बनाता रहेगा, आप नए नए सोल्यूशंस बनाते रहो और बस आप फंसे रहोगे उनके। दैट्स व्हाट हैपेंस।
ऑलराइट, तो हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर तो इम्पैक्ट की बात कर ली, अब पर्सनल लाइफ के ऊपर आ जाते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी वर्क प्लेस वगैरह इस सब को कैसे इम्पैक्ट करता है फिर कीप ओवर थिंकिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, सो ओवर थिंकिंग का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ना, वो हमारी सोशल लाइफ पे होता है। क्योंकि हम लोग इतना हर चीज को लाइक एनालाइज, ब्रेक डाउन, डायसेक्ट कर रहे होते हैं कि वी मे फाइंड इट वेरी हार्ड टू ट्रस्ट पीपल। हम यही सोच रहे होते हैं, किसने ऐसा कहा, क्या मतलब था, क्या चाहते हैं ये, क्या करना है इसके बाद, इसके पीछे इंटेंशन क्या थी, क्या ये मेरे साथ लॉयल है, नहीं है, ठीक है। सो आप इतना ओवर एनालाइज करते हो कि उनका बिहेवियर समझना और खुद से रिस्पॉन्ड करना बिकम्स अ रियल स्ट्रगल फॉर अस। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ये चीज होती है कि यू आर अनेबल टू सक्सेसफुली मेक दो सोशल बॉन्ड्स विद पीपल। ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप अपने काम के ऊपर, आप नहीं ट्रस्ट कर सकोगे। आपको लगेगा कोलीग्स या क्लास फेलोज जो है वो आपसे कुछ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लेने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, दे आर जेलस ऑफ यू और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप सोचते रहोगे ना। सो बहुत जरूरी होता है कि हम सोशल रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट कर सकें और रिस्पेक्ट कर सकें एक दूसरे को। सो ओवर थिंकिंग मेनी अ टाइम्स टेक्स दैट अवे फ्रॉम अस, कि हम नहीं ट्रस्ट कर पाते, हम रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड कर पाते। सो या, दैट्स ऑलराइट, हाउ इट तो इम्पैक्ट्स इट। like so coming towards causes, what do you think causes mental health sorry overthinking? आपने बात की कि कुछ mental health issues होते हैं जो लीड करते हैं डायरेक्टली overthinking को, इसके अलावा क्या चीज हो सकती है that is directly causing you to overthink? सबसे पहले तो आपके लाइफ इवेंट्स, ठीक है। बहुत दफा ऐसे हो सकता है कि हमने पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी चीज को हम प्रॉपरली थिंक थ्रू ना कर पाए हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए अच्छे ना आए हो, या फिर आपने किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट डाली हो एंड इन द एंड यू हैव फेल्ड, या फिर किसी चीज को लेके आप बहुत एक्साइटेड रहे हो एंड इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी गुड फॉर यू, ठीक है। तो क्या होता है कि वो पहले की सारी मेहनत, सोच, विचार, यू स्टार्ट डाउटिंग दैट एंड यूर लाइक, जब मैं अगली दफा ये काम करूं तो मैं बहुत ही बेहतर तरह से करूं सो दैट आई डोंट फेल। तो आप ओवर थिंकिंग करोगे। फिर अगर आपके फैमिली में, घर में देयर आर सम इश्यूज गोइंग ऑन, मोस्टली उन बच्चों को देखा गया है जिन्होंने कि डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज विटनेस किया हो, कोई ट्रॉमा हो उनकी लाइफ में फ्रॉम अ यंगर एज, कोई लाइक एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ। फिर अगर कोई हिस्ट्री है पास्ट मेंटल इलनेसेस की, डिप्रेशन पर्टिकुलरली कहीं रहा हो, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ रूमिनेशन, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो अबाउट योर पास्ट। फिर अगर किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस रही हो, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए आप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेडिसिन इलाज लेते रहे हो, दैट हैज कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इन इटसेल्फ, तो वो चीज भी आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा सकती है। सो इट्स लाइक अ वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट कैन कॉज ओवर थिंकिंग फॉर यू। बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि अगर आपका स्पाउस कर रहा है ओवर थिंकिंग, या अगर आपका बेस्ट फ्रेंड कर रहा है, तो आपको भी उनके साथ रह रह की आदत हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना जो कि आपकी हर सोल्यूशन के लिए वही बात है, मसला बनाते हैं कि मैं ये काम ऐसे कर लूंगा, वो तुझे क्या पता हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू अ लॉट टू ईच अदर। तो उस तरह की सिचुएशंस के बाद भी लोग सोचना शुरू कर देते हैं। सो हर बंदे की, जस्ट लाइक ऑल थिंग्स इन मेंटल हेल्थ, एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्टोरी, एवरी पर्सन हैज देयर ओन कॉजिंग फैक्टर्स एंड एवरीथिंग ना। तो इसमें भी वही होता है, बट ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको कॉज कर सकती हैं ओवर थिंकिंग। ठीक हो गया। सो कॉजेस के बाद अब आ जाते हैं कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर। हाउ डू यू ट्रीट दिस ओवरथिंकिंग, या ट्रीटमेंट से ज्यादा हाउ डू यू कोप विद इट, हाउ डू यू ओवरकम आई ओवर? थिंक, हाँ, मैनेज वुड बी अ बेटर वर्ड। हाँ जी जैसे कि मैनेज। मैंने कहा, सबसे पहले तो द अवेयरनेस, ये समझना कि मसला है। क्योंकि मेंटल एक्सेप्टेंस। हेल्थ इतनी एक्सेप्टेंस, मेंटल हेल्थ इतनी स्टिग्मेटाइज्ड है हमारे यहाँ कि हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है कि मुझे इशू है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि थेरेपी लेने भी उस वक्त आते हैं जब उन्हें किसी ने पुश किया होता है, एंड व्हेन दे कम टू अस, व्हेन दे सिट विद अस, तो वो पहले सेशन में यही कह रहे होते हैं कि मुझे इशू कोई नहीं है, वो मुझे उसने कहा था तो मैं आ गया या आ गई, ठीक है। तो वी हैव टू टेल देम कि आपको जरूरी नहीं है कि इशू हो। यू कुड बी परफेक्टली हेल्दी, यू कुड बी अ परफेक्ट कोपिंग पर्सन जो कि वेल सेटल्ड है, जो कि ग्रोथ की तरफ जा रहा है, बट यू मे वांट टू टॉक टू समवन। कोई एक ऐसा ऐसा इवेंट हो गया हो जिसके बारे में आपको लगता है आप उसके बाद थोड़ा प्रोसेस कर लो उस चीज को ना। सो द अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। अब ओवर थिंकिंग में ये होता है कि अक्सर कोई ना कोई चीज ट्रिगर कर रही होती है हमारी ओवर थिंकिंग को। कोई वक्त ऐसा होता है, जैसे
there was this someone who was coming to me for therapy, तो वो मुझे ये बताते थे कि जो सुबह का टाइम होता है, like before they have their breakfast and they leave for work, जिस वक्त बिल्कुल खामोशी होती है, उस टाइम अगर उनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाए, जो कि अक्सर हो जाती थी, तो इट वुड हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन देयर एंटायर डे. ठीक है, अब ये क्या था कि बीइंग अलोन, बीइंग विद देमसेल्व्स, बीइंग लाइक हैविंग नथिंग एल्स टू डू वाज अ ट्रिगर फॉर देयर ओवर थिंकिंग पैटर्न. सो ये पहचानना कि आपको क्या चीज ट्रिगर करती है ओवर थिंकिंग को, ये बहुत जरूरी है. देयर वाज दिस अनदर पर्सन जो ये बताते थे कि ड्राइव करते हुए दे स्टार्ट ओवर थिंकिंग. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस लेके आओ कि ओके मैं ओवर थिंक करती हूँ या करता हूँ, जो कि मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है. दूसरा, आप अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो. सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स इज कि आप एक जर्नल या डायरी मेंटेन करना शुरू कर दो. जिस जिस टाइम पे आपकी ओवर थिंकिंग ट्रिगर होती है उसको नोट कर लो. अगर आप ये एक्सरसाइज 2-3 हफ्ते तक करोगे तो यू कुड इजीली बी एबल टू सी पैटर्न्स कि अच्छा मेरे हर दिन में इस टाइम में मुझे ट्रिगर होता है, इस वक्त में या ये काम होने के बाद मेरी थॉट्स ट्रिगर होती हैं. सो वंस यू एक्सेप्ट, देन यू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर. फिर हम उस हर ट्रिगर के अगेंस्ट वी ट्राई टू फिल दैट टाइम विद समथिंग एल्स. उस टाइम पे कुछ और था नहीं या कुछ और एंगेजिंग था नहीं, सो दैट वाज ट्रिगरिंग योर ओवर थिंकिंग. सो व्हाट कैन यू डू एट दैट टाइम टू अवॉइड इट? जैसे जिनको सुबह सवेरे हो रहा था, तो व्हाट वी डिड देयर वाज दैट वी मेड देम गो फॉर अ वॉक एट दैट टाइम so that they can engage in something that is keeping them busy in a healthy way. अगर ड्राइव करते टाइम हो रहा है तो you can listen to something, you can listen to some music, or you can make a to-do list, or you know something like that, or you can practice In short, mindfulness, I'm deep breathing, diverting your attention. exactly something like that. Yes. फिर एक और काम जो आप कर सकते हो, दिस इज लाइक जैसे कि एक लॉयर कोर्ट में खड़ा होता है और वो हर एक इल्जाम के अगेंस्ट कुछ एविडेंस लेके आता है कि ये चीजें बताती हैं कि ये हुआ, लेकिन ये चीजें बताती हैं कि शायद ये नहीं हुआ या ये चीज डाउटफुल है. एवरी टाइम योर माइंड गोज इनटू दैट लूप और आपको ओवर थिंकिंग आती है, तो आप एविडेंस देखना शुरू कर दो. मुझे लग रहा है कि ये चीज इस तरह होगी, सो क्या ये एक्चुअली ऐसी है? क्या वो इवेंट वाकई में ऐसा था? क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी जिंदगी में हर काम की 50-50 होती है. इट कुड गो आइदर वे. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें अगर हम पर्टिकुलर एफर्ट डाल रहे हैं और कुछ चीजें फोर्स ही कर रहे हैं, तो वी कैन सी कि अच्छा 80-20 या 70-30 तक आ जाती है चीज. सो वो प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करें. ठीक है, सो जैसे आप वो चीजें देखोगे, सो आप क्या कर रहे हो? आप एक तरह से अपने ब्रेन को ना एक एविडेंशियली रिफ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, तुम तो मुझे ये बता रहे हो बट एक्चुअली ऐसे है नहीं, एक्चुअली ऐसे है. सो ट्राई टू डू दैट विद योरसेल्फ. इट रियली हेल्प्स पीपल. और ये तमाम चीजें, मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये तमाम चीजें हम एकदम से नहीं कर पाएंगे, ना ही एक दफा प्रैक्टिस करने से, 2 दफा प्रैक्टिस करने से होगा. यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली डू इट फॉर एटलीस्ट अ मंथ टिल इट बिकम्स अ हैबिट विद यू. सो प्रैक्टिस करिए, इन चीजों को रेगुलरली करिए, फॉर एटलीस्ट 3 months करिए, एंड देन सी द डिफरेंस. Yeah. All right, all right. So now we are going to take questions. हाँ जी, please. कि जब भी हम ओवर थिंकिंग की या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो आई कैन नॉट पुट इनफ एम्फेसिस ऑन द फैक्ट कि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, जब तक आप सेल्फ केयर नहीं करोगे, तब तक आप अपनी कोपिंग को या अपनी मेंटल हेल्थ को, वेलबींग को एनहांस नहीं कर सकते. और ओवर थिंकिंग के साथ भी यही होता है कि अगर तो आप दिन में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो कि आप अपने साथ कंपैशनेटली बात कर रहे हो, अपनी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज कर रहे हो, अपने माइंड बॉडी के साथ कनेक्टेड हो, माइंडफुल प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेट करते हो, सिंपली सरीन डीप ब्रीथिंग करते हो, दिन में जस्ट 5 breaths a day. ठीक है, स्टार्ट विद 5 breaths a day, हार्डली टेक्स अ मिनट. अगर आप माइंडफुली कनेक्टेड हो अपने साथ, तभी आप इन द फर्स्ट प्लेस एक्सेप्ट करोगे, फिर ट्रिगर आइडेंटिफाई करोगे, फिर रिफ्रेम करोगे अपने ब्रेन को, एंड दैट्स हाउ इट फ्लोज बेसिकली. सेल्फ केयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डू दैट. Exactly. So we are now taking questions. अगर आपके किसी भी type के people who are watching this right now, if you have any sort of questions from Sumbul Kilani regarding overthinking well-being, please drop them below. अभी मैंने एक question देखा था. Let's go with that. What to do when you face a shock in your career, family, or relationship level, and your mind keeps overthinking everything?
ओके, लाइक आई सेड बिल्कुल शुरू में ही कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ओवर थिंकिंग को ट्रिगर कर सकती हैं, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ट्रॉमा. सो ट्रॉमा जो बाकी लोग देख रहे हैं, फॉर देम टू ब्रेक इट डाउन, कि अगर आपकी, जैसे मैंने लिखा कि आप अपने करियर, फैमिली या रिलेशनशिप में कुछ शॉक से गुजरो. सो शॉक बेसिकली क्या होता है? समथिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, एक अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट जो हो जाता है आपकी लाइफ में, ठीक है. सो उसको हम लोग टेक्निकली ट्रॉमा ही कहते हैं, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड इट गिव्स यू इंटेंस पेन एंड हर्ट्स यू अ लॉट. तो जब कोई इवेंट इस तरह का हो जाए तो ऑफ कोर्स आपके जहन में वही चलता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो चलता रहेगा. क्योंकि ट्रॉमा या शॉक करता क्या है कि वो आपके ब्रेन में जो वो फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स है ना, उसको एक्टिवेट कर देता है. जो आपको एड्रेनल रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट कर देता है. एड्रेनल रिस्पॉन्स हमारे दिमाग का या जिस्म का जो है, उसका बेसिक एम ये है कि वो हमें नुकसान से बचाए. सो व्हेन समथिंग हैपेंस अराउंड अस दैट हर्ट्स अस फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली, तो बॉडी खुद को बचाने की कोशिश करती है. अब एड्रेनल हार्मोन जितना ज्यादा होगा बॉडी में, उतनी ही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन आपका ज्यादा होगा. अब इस सिचुएशन में द इजीएस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस ओवर थिंकिंग का लूप इज कि आपके जिस दिमाग का या जिस्म का जो एड्रेनल सिस्टम है वो शट डाउन कर दो आप सब, ठीक है. और उसको शट डाउन करने का जो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू एटलीस्ट इंक्लूड 30 minutes of walk in your every. सेकेंडली, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए. मकसद दोनों ये काम करने का ये है, वॉक करके, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, डीप ब्रीदिंग करके आप अपनी बॉडी को ये सिग्नल देते हो कि वो चीज गुजर गई है. द शॉक इज ओवर, द ट्रॉमा इज इन द पास्ट, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या चुका हूँ एंड आई एम फाइन. तो अपनी बॉडी को ये बता रहे होते हो क्योंकि ना, काम डाउन, सब ठीक हो रहा. इसके अलावा आपको उस तकलीफ को प्रोसेस करना होता है. अब प्रोसेस करने से मेरा लाइक what I mean by processing is कि you give a meaning to that experience, कि वो मेरी लाइफ में किस वजह से हुआ. because it's very important कि हम अपनी लाइफ की different events को कोई meaning दे के आगे बढ़ें. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इशू हो जाता है, तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल फिरते हैं. क्या मैंने कुछ किया था उस वजह से ये हुआ? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया? क्या अगले बंदे ने जानबूझ के मुझे नुकसान पहुंचाया? हमारा दिमाग के सारे सवाल उठाता है कि आखिर क्यों हुआ ऐसे. तो बहुत जरूरी है कि हम उसको खुद से एक प्रॉपर मीनिंग दें. सिट डाउन विद योर इवेंट. अगर बेस्ट तरीका ये होगा कि गो एंड मीट अ साइकोलॉजिस्ट, गो एंड मीट अ थेरेपिस्ट, दे विल हेल्प यू प्रोसेस इट. अगर वो नहीं हो सकता, आप खुद से करना चाह रहे हो, तो डायरी मेंटेन करो, जर्नलिंग करो, राइट डाउन योर थॉट्स. देखिए आपकी थॉट्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, कौन सी चीज आपको ज्यादा परेशान कर रही है, ठीक है. बट स्टिल आई वुड से फॉर मीनिंग मेकिंग इट्स बेस्ट कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ. लेकिन अपने ओन पे जो आप बेस्ट चीजें कर सकते हो वो यही है कि प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, टेक अ वॉक, गो फॉर एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 minutes ईच डे. और ये बहुत एसेंशियल है. आप इसका आप कॉन्स्टेंटली फॉर 2 to 3 weeks करो. अपने आप खुद देखो कि आपके मूड पे कितना अच्छा असर पड़ता है. बिकॉज वो केमिकल्स की बात है ना, इट्स नॉट अबाउट द थॉट, इट्स अबाउट द केमिकल. तो अगर आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छा वाला केमिकल होगा, डोपामिन ज्यादा हो जाता है, सेरोटोनिन ज्यादा हो जाता है, आप खुद ही रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है. एड्रेनलिन सिस्टम खुद ही शट डाउन हो जाएगा. तो ये चीजें हैं आप कर सकते हो. एंड वंस यू रिजॉल्व द ट्रॉमा, वंस यू आर डन विद मीनिंग मेकिंग, तो आपकी ओवर थिंकिंग खुद में खुद खत्म हो जाएगी. Yeah, so that's how it works. Alright, and so there's another question which says, Assalamu alaikum, I'm an overthinking. It's because of past events which have happened with me and my kids. I'm going through very hard time of my life due to almost broken relationship. How can I get therapy to incomplete question है. But I believe it's how can I get therapy or would therapy help with it? I guess that's the question. Okay, अब वो क्वेश्चन आता नजर नहीं आ रहा, so I'm very much confused here. But what she's saying is कि वो overthink कर रही हैं, उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो overthink कर रही हैं, but that's because of the past relationships, events, exactly की वजह से हो रहा है. So you already know the problem. I'm not sure if you want to seek therapy to improve your relationship or you want to seek therapy to come out of this trauma जो आप इस वक्त face कर रहे हो, ठीक है. In either case आप ये कर सकते हो कि talk to a therapist, कोई भी जिसको आप trust करते हो. हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आपके थेरेपिस्ट के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो. डॉक्टर्स जो होते हैं, नॉर्मल डॉक्टर्स, उनके पास हम जाते हैं, वो एक पर्ची पे दवाई लिख के दे देते हैं, हम लेके घर आ जाते हैं, खा लेते हैं, दैट वर्क्स. थेरेपिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज
थेरेपिस्ट के साथ जो आपकी थेरेपी का प्रोसेस होता है वो तभी सही होता है जब आप प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सको. Contact therapists, go and meet them, talk to them, see how you feel when you're talking to them, and hopefully they'll be able to resolve whatever you're going through. Because I cannot exactly explain कैसे ये process होगा, किस तरह से वो therapy में आपकी help करेंगे, कैसे आप इससे निकलोगे. But मैं यही suggest करूँगी कि talk to therapists, meet them, जिसके साथ बात करके अच्छा लगता है उन्हीं को contact करिए, and I'm very sure they'll help you out. Because relationships, kids और आप जब आते हो ना, ये जो एक triangle सा बनता है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हो. इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर वेल बीइंग, अगर आप साउंड डिसीजंस ले सकते हो तो बच्चों और रिलेशनशिप को आप मैनेज कर लेते हो इन द एंड. बट इफ यू कैन डू दैट तो सब कुछ फंसा रहेगा. ठीक है. So work on yourself, go to therapy if that helps. Yes. Alright, and she is saying कि I want therapy to move out of this overthinking. I guess that was the question. Yeah, I think we've already touched that. Yeah, कि अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो और आपको वो हेल्प आउट कर दे वो सारा कुछ प्रोसेस करने में, आपकी कोपिंग एनहांस हो जाए, कोई अच्छी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सीख लो. आई डोंट नो वो और क्या इश्यूज हैं. इन एनी केस द थेरेपिस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट, सो डू गो देयर. Alright, so Fiza, in case you're still, how can you guys help me? Fiza, can you please drop us an inbox? आप हमें inbox करें. हमारा Saturday को free therapy session होता है. So if you drop us your message, drop us a message आपके number के साथ हम आपको free therapy session provide कर सकते हैं. So please just inbox us on the listener.pk and we'll book a free session for you and we can help you out. Alright, Symbol, if there's anything you would like to add, because I don't think we have any more questions coming in. I think we're good. We have covered most of the things. Yes, I think, yeah. Alright, so thank you very much for joining us, that too right after Eid holidays. Thank you for giving us a time. और बहुत अच्छा session. I'm pretty sure a lot of people got to know a lot of things regarding overthinking. Or in future भी कोई भी questions हो, we are always here to help. And I'm sure you provide therapy sessions in Islamabad somewhere. No, I'm working online therapy my clinic because I am 9 to 5 office में हूँ. Then I do a lot of other things as well. So I am strictly practicing online these days. Yeah. Alright, so anyone who has some sort of problems या कोई भी therapy session के लिए you can always drop a message to Sumbul या फिर आप हमें thelistener.pk पे message drop कर सकते हैं. Saturday को हमारा free therapy session day होता है. We can provide free therapy sessions for you. और बाकी 24/7 available हमारी helpline होती है. We are always here to help. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू, सिंबल है, हम हैं thelistener.pk. We are always here to help. So thank you again very much, and we will be back with another topic next week, inshallah. And till then, please prioritize your mental health and take care of yourself. Thank you. Yes, thank you so much for having me over. And I'll be posting a summary of this session on my page as well, so you guys can go and check it out. Right. All right. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.